Sorry. And there is no other alternative. It's only the Lord Jesus who can change your life. और दूसरा मार्ग नहीं, केवल प्रभु यीशु आपका जीवन को बदल सकता And we है। all want to have a change in our life, isn't it? और हम लोग चाहते हैं कि नहीं, बदलाव होने के लिए। And that change for good is only brought by the Lord Jesus Christ. और वो अच्छा बदलाव केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव And है। this evening it is going to be brought out to you in a still clearer way. और बहुत साफ रीति से आज के शाम के समय ये बताया जाएगा। And we have our brother Varghese Chaco with us this evening. आज भाई वर्गीस चाकू है हमारे साथ। And he is going to share God's word with you this evening. आज वो परमेश्वर का संदेश को लेकर आएंगे। And keep your hearts open, हमारा मन को खोल के रखेंगे, keep your eyes open, आंखों को खोल के रखेंगे, and ears open, और कान को भी खोल के and रखेंगे। listen to what God wants to speak to you this evening, परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहते हैं हम ध्यान से सुनेंगे, because it can change your life क्योंकि वो आपका जीवन को बदल सकता for है good. अच्छे के लिए। Well, we commit this meeting into God's hand. आइए हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं सभा को। Our most merciful God, we thank you for this evening. हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आज के शाम के समय के लिए। We pray that you may anoint thy servant afresh this evening here, प्रभु हमारा प्रार्थना है कि आपका दास को आप अभिषेक करेंगे, and that he would proclaim the gospel of thine, आपका सुसमाचार को यहाँ पर वो बांट सकेंगे, that those weary ones, those needy ones may find solace in you. ताकि प्रभु जो जरूरतमंद लोग यहाँ पर है प्रभु उनको सांत्वना मिले। Lord, we pray your Holy Spirit may take control of the meeting. हे प्रभु, हमारा प्रार्थना है कि आपका पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण में रखेगा And इस सभा में। those who have come with the desire to find solace and rest in you may find peace and joy when they leave this place. और जो यहाँ पर आए प्रभु आपका शांति सांत्वना पाने के लिए, वो आनंद और शांति पाकर जाए। There is no one like you, God, we realize. हाँ प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। And everybody ought to know who Jesus is. और सचमुच सब सब लोगों को यीशु कौन है जानना Thank जरूरी you, है। Lord, for revealing yourself to us. धन्यवाद, आपने अपने आप को प्रकट किया। And this evening, there may be some more who would be revealed of your love this evening. और आज के शाम के समय प्रभु और भी कई लोग आपके बारे में प्रगतिकरण मिलेगा We उनको। commit thy servant into your hands once again. आपका दास को आपके हाथ में सौंपते We हैं। pray that you may speak through him. उनके जरिए प्रभु आप हमसे And बातें your कीजिए, name be lifted up. आपका नाम को महिमा And you मिले। said, if I be lifted up, I'll draw all men unto me. जैसे कहा गया कि जब मुझे ऊंचे उठाया जाएगा, मैं सारे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। We commit the interpreter into your hands too. जो भाषांतर करेंगे उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। Lead us on, for we ask this in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. हमें अगुवाई कर, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। Request Brother Benu to come forward, please. Good evening. शुभ संध्या। We were talking about God. परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे थे। Just put up a slideshow here. Yes. Can God be a father? परमेश्वर हमारा पिता बन सकते हैं? All of us have different concepts of father. हम सब लोगों को पिता के बारे में अलग अलग धारणा है। Some of us have wonderful fathers in life. किसी किसी का अपने जीवन में अद्भुत पिता होते हैं, Caring, सेवा करते हैं, powerful, सामर्थी है, humble, नम्र है, beautiful, wonderful fathers. और सुंदर और अद्भुत पिता को देखते हैं। Some of us perhaps had not so great experience with the fathers. हम में से कुछ लोगों को पिता के बारे में अच्छा अनुभव नहीं होगा शायद। We read in the newspaper sometimes abusive fathers. हम देखते हैं कि खबर में देखते हैं, अखबार में देखते हैं कि ऐसे पिता जो दुर्व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ। Fathers who have abused their position, their money, their resources, and never looked after the children and wife.
और पिता लोग जो वो अपने पत्नी को ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं, पैसे की वजह से, मान सम्मान की वजह से वो दुर्व्यवहार करते हैं। So sometimes we may have mixed feelings about fathers. और कई बार हमको पिता के बारे में हम देखते हैं कि मिला हुआ अनुभव हम लाते हैं। So keep all that aside if you had a bad experience or understanding of father. अगर पिता के बारे में बुरा अनुभव है, उसको थोड़ा बाजू में रखिए अभी। That's an exception. ये तो इस प्रकार से अलग है। Natural world brings about a father who takes care of his children and have a wonderful relationship with the children. और हम देखते हैं कि प्रकृति दुनिया में पिता अपने बच्चों का सुधि लेता है, ध्यान देता है बहुत सुंदर रीति से। In one way, we can call God the Father because he has created us. एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है क्योंकि उन्होंने हमको सृष्टि किया है। In that sense, God is our Father. Everybody can say because God is the creator God. अगर ऐसा है तो सब लोग कह सकते हैं परमेश्वर हमारा पिता है क्योंकि वो सृष्टि करता है। We read in the Bible, is he not your Father, your creator who made you and formed you? और हम पढ़ते हैं कि क्या वो तुम्हारा पिता नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, जिन्होंने तुमको सृजा है, तुमको बनाया है। All of us are made, created by the Father God. हम सब लोग वो पिता परमेश्वर के द्वारा सृजे गए लोग हैं। Only a convoluted, deprived mind can think that we all are brought out to this world through monkeys. और ऐसे जो हम देखते हैं कि जिसका मन दूर है, वो लोग कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से हम दुनिया में आए बंदरों की वजह से। We have not come from monkeys. बंदर से हम नहीं आए It has no scientific validity. और कोई वैज्ञानिक वहां पर कोई प्रमाण नहीं है। People call it as if it is science. It is not. और लोग कहते हैं वैज्ञानिक रीति से, लेकिन ऐसा नहीं। If that is the case in our zoos, in the cages of monkeys, suddenly next day morning you should have seen some man standing up. अगर वो बात सच होता तो वो चिड़ियाघर में जो बंदर लोग अगला दिन इंसान दिखना चाहिए। Maybe millions of years have passed by. Some monkey should become a man at least. और कितने लाखों लाखों साल बीत गए, कुछ ना कुछ बंदर तो इंसान बनना चाहिए। आप सुना है क्या ऐसा कुछ? बंदर नहीं, नहीं अभी तक नहीं। So it's not science. सो ये वैज्ञानिक चीज नहीं It's है, not proved. ये प्रमाणित नहीं है। People doesn't wanted to believe that God created. Hence they created stories. और लोग विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, इसलिए वो कहानी बनाते हैं। That's why it is not called science. It is called thesis. और इसीलिए ये विज्ञान नहीं कहा गया, लेकिन ये कुछ प्रणाली कहा गया। हाँ, so it is never a science. ये विज्ञान नहीं है Never proved. और प्रमाणित नहीं है। No evidence ever. उसमें कोई किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। So God created us. To that extent, God is the Father. परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, उस दृष्टिकोण से वो हमारा पिता है। But I'm not talking about that fatherhood tonight. लेकिन वो पिता के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। I'm talking about God. Can he become a father like a human father and child relationship? जैसे एक मनुष्य का पिता और बच्चे का जो रिश्ता है, वैसे परमेश्वर हमारा ऐसा रिश्ता बन सकते हैं। Do you ever felt that way? क्या ऐसा कभी आपने अनुभव किया है? When we were child, जब हम बच्चे थे, the relationship we had with the father, हमारा जो रिश्ता हमारे पिता के साथ जो था, I wanted a chocolate. मुझे चॉकलेट चाहिए, What will I do? क्या करना है मुझे? पूछना ही है। शर्म आने का कोई बात ही नहीं होता, जाके पूछेगा, है ना, बिंदास, है कि नहीं? क्यों? That's the relationship. क्योंकि हम जाके पिता को पूछते हैं, क्योंकि वो रिश्ता है। I can ask anytime. मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, I can jump into his arms. मैं कभी भी उसके बाहों में जा सकता हूँ, I can pull his face all around. और उसके चेहरे को मैं यहाँ वहां खींच सकता I हूँ, can kiss him. मैं चुम्बन दे सकता I हूँ, can hug him. मैं उनको गले लगा सकता हूँ, Put me on his shoulders and walk around. और अपने बाहों में लेके वो चल सकता है मेरे I साथ। remember my father had a little good muscles.
और भाई बोल रहे कि उनका पिता का अच्छा मसल हुआ करता And the था, best pillow I had was on his arms. और वो मान ली कि उनका जो बाहें है ना, उनका तकिया जैसा इस्तेमाल When करता। I want to sleep, I will just ask him to lie down. और जब जब वो सोना चाहते थे उसके बाहों में सोते Spread थे, his arms like this. और इस प्रकार से फैला I put हुआ, my head on that. और वहां पर सर झुकाकर, In no time I sleep. और इस प्रकार से वो सोते थे। You see the father-child relationship? ये पिता और बच्चा का रिश्ता है। Remember when we went to a beach one day एक बार हमने एक बीच में गए, and the roaring of these waves and the sound so big और वहां पर जो आवाज आया बहुत भयंकर आवाज था, and the water coming into onto the shore. और उस किनारे वो पानी भयंकर रीति से आया, Hold on to his hands और मैं भाई ने उनका पिता को पकड़ लिया and हाथ, he held me up. और उन्होंने भी पकड़ा, Oh, when he was holding me as if I am the master of the sea. और वो जैसे पकड़ा जैसे कि I'm very free. वो समंदर का मालिक है। My fear gone. उसका दूर भय चला गया। Why? क्यों? Father is holding my hand. पिता ने हाथ को पकड़ा है, He is powerful, क्योंकि वो सामर्थी है, strong. वो सामर्थी है। I remember when I was in the first standard or so, और जब वो भाई पहला स्टैंडर्ड में थे, I was little taller than rest of the children in the class. बाकी बच्चों के तुलना में वो लंबे थे, And they used to call me Lambu. और बच्चे लोग उनको लंबू कहते थे। I was teased like that all the while. And और I used to get frustrated with this. बच्चे लोग ऐसे चिढ़ाते थे और उनको भी बुरा लगता था। One of those days, my father came because he was abroad and he came to visit me in the school to figure out what I am doing. और उनका पिताजी विदेश गए थे, एक दिन वो वहां पर स्कूल में भ्रमण करने के लिए गए, So he later see him inside the school. और वो कितना चकित हो गए उनको देखकर, I ran to him, और दौड़ कर गए उनके held पास, his hands, उनका हाथ को पकड़ा, took him all around to those guys who were teasing me. और उनके जो लोग चिढ़ाते थे उन बच्चों के पास लेकर गए। I want to tell him, tease me, man. I'll show you. और और कहा कि ये मेरा पिताजी, अभी जिसको चिढ़ाना है चिढ़ाओ। ऐसे Why? क्यों? He is strong. क्योंकि वो सामर्थी है, He's caring. वो ध्यान देता है, If anybody troubling me, he will take care of it. कोई तकलीफ देता है तो वो वहां पर उनको मदद करता है। Can God be that father for us? क्या परमेश्वर हमारा ऐसा पिता बन सकते हैं? Oh, Bible says that way. बाइबल ऐसा कहता है। As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. और जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर तरस खाते हैं, वैसे प्रभु हमारे उनके बच्चों के साथ तरस खाता है, Even more. और ज्यादा करता है। Suppose my father passed away. मान लीजिए मेरा पिता गुजर गए, Oh, it says in the Bible, और बाइबल में लिखा है, a father to the fatherless, और जो अनाथ है उनके लिए वो पिता a है, defender of widow. विधवाओं के लिए वो पिता He जैसा is है। God in his holy dwelling. ऐसा वो परमेश्वर है उनके पवित्र मंदिर He में। is a true father. वो सच्चा पिता है, He is not an abusive father. वो बुरा व्यवहार करने वाला पिता नहीं He है, is not a drug addict or an alcoholic addict. या शराबी नहीं है, या दुर्व्यवहार करने वाला नहीं He है। is not a person who gets irritated and getting angry and beat his wife. वो ऐसा नहीं कि वो गुस्सा होके अपना पत्नी को मारता रहे। He is a powerful God, वो एक सामर्थी परमेश्वर है, all powerful father. पूरा सामर्थी पिता, Nothing is beyond him. और उसके आगे और कोई बड़ा नहीं, There is nothing impossible with him. कोई भी चीज असंभव नहीं उसके द्वारा। What a father, powerful father. कितना कैसा पिता है हमारा सामर्थी। He is a protective father. वो सुरक्षा देने वाला पिता He है, takes care of his children. उनके बच्चों का वो सुधि लेता है। He says that those who have come in his hands he will never leave them nor forsake them. वो कहते हैं कि जो उनके हाथ में आएगा वो कभी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको ठुकराएंगे नहीं। He is a providing father. वो प्रबंध करने वाला पिता है। It says that the one who provides for the birds of the air, he is the one who provides for you. और ऐसे लिखा है कि जो आकाश में पक्षियों को खिलाने पिलाने वाला, वो आपका भी प्रबंध करता है। An old man in his last days wrote in the Bible that there is no one ever seen children of righteous or children of God ever begging for bread. और एक ऐसा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे लिखा है कि उन्होंने कभी नहीं देखा कि जो परमेश्वर के बच्चे कभी जाके भीख मांगते हैं। He is an all providing God. वो पूरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। He knows your need. वो आपका जरूरत को जानता है, Understands your feelings. आपका भावनाओं को समझता है। He is the one who
cares for you, और वो आपका सुधि लेता है, who tells you, be not anxious, और वो कहता है कि चिंतित मत रहो, I will take care of you. मैं तुम्हारा सुधि लूंगा। And he's an all-knowing God. और वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। It's not that he doesn't understand you. ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं समझते नहीं, Perhaps your human parents, father may not have understood हो you. सकता है आपका माता पिता आपको नहीं समझेंगे, Your parents or your spouses or your friends have not understood you. हो सकता है आपका मित्र, आपका जो शादी का जोड़ी नहीं समझते होंगे आप, But he knows your heart. लेकिन वो आपका हृदय को जानते He हैं sees your thoughts afar off. और दूर से आपका विचार को जानते हैं, Oh, there is nothing hidden from him. और उसके सामने कोई भी छुपा हुआ नहीं From है। your mother's womb, he carefully seen you. He knows you. आपके माँ के गर्भ से ही वो आपको जानते हैं, He sees the tears that you shed on your pillows. और आपके तकिए में आपका आंसू बहाते चीजों को भी वो देखता He है, sees the pain in your heart. आपके हृदय में दर्द को वो देखता है, That's it. वो जानते हैं। Oh, it's an all-knowing Father. वो सर्वज्ञानी पिता है, He's an all-good God. और वो अच्छा परमेश्वर भी है। We think that God means somebody who's ready to punish. हम सोचते हैं कि परमेश्वर मतलब ऐसा कोई दंड देने वाला है, No, ऐसा नहीं है। because that's a wrong understanding. ये हमारा गलत धारणा है, Because we see around us gods which are full of vengeance and anger and all sorts of things. क्योंकि आजू बाजू में जो परमेश्वर के बारे में हम सुनते हैं वो ऐसे लोग जो बदला लेते हैं, गुस्सा करने वाले। That's not the Father of God. लेकिन पिता परमेश्वर ऐसा नहीं है, The real God. सच्चा परमेश्वर He's a good God. वो तो अच्छा परमेश्वर His है, thoughts for you are for good and not for evil. और आपके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, बुराई नहीं। He's a good God. वो अच्छा परमेश्वर है, As a good Father. वो अच्छा पिता है, He is an all holy Father. और वो पवित्र पिता है। In him there is no darkness. उसके अंदर कोई अंधकार नहीं है, There is no evil in him. उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। Absolutely sinless, perfect, holy Father. वो पाप रहित पवित्र पिता है। वो There is no partiality between, sometimes as fathers, we see in the world, father liked elder son, not the younger son, or younger daughter, not the elder one. We see all these partialities. कई बार हम देखते हैं पिता बड़ा बेटा को ज्यादा प्रेम करते हैं या छोटा बेटी या बड़े बेटी को, ऐसे पक्षपात करते हैं। God is an all-loving God. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है, Good God. वो अच्छा परमेश्वर There है। is no partiality with him. वो कभी पक्षपात नहीं There करते, is no shadow of turning with him. और वो उसके सामने कोई भी हम देखते हैं कि वो अंधकार नहीं है। Absolutely good God, good Father. पूरा रीति से वो अच्छा परमेश्वर, अच्छा पिता A है, compassionate Father. वो तरस खाने वाला पिता है। A Father who feels pity for his children. जो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वो तरस खाता है। I was traveling from some place to another place yesterday night, कल मैं एक जगह से दूसरे जगह यात्रा कर रहा था, and one baby was crying throughout, some 4-5 hours. और 4-5 घंटा एक छोटा बच्चा रो रहा था। And I saw the father sitting there happily reading something and having his whiskey. और मैंने देखा कि पिता ने बाजू में बैठा है, कुछ तो वो देख रहा है। Mother has taken the child to the father, and father sitting and lecturing how to take care of the child. और माँ ने जाके बच्चे को उनके पास लाया, लेकिन पिता ने उनको वहां पर सिखाने लगे हैं। And having no help, then she was putting on the child and walking around up and down in that moving vehicle. पिता कुछ मदद नहीं कर रहा है और माँ यहाँ वहां दौड़ रही है। That's not our father. हमारा पिता ऐसा नहीं I है। was thinking, this fellow is terrible. मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति तो भयंकर आदमी है, A young fellow, जवान व्यक्ति है, having no pity for his little baby. बच्चे के ऊपर कोई दया नहीं है। Do you think that's a good father? क्या अच्छा पिता ऐसा है? Oh, ऐसा नहीं है, impossible. असंभव है। Not our father. हमारा पिता ऐसा नहीं है। He feels pity for his children. वो अपने बच्चों के लिए वो दया करते हैं। Even when they are at fault, he feels pity for them. जो उसके अंदर कुछ गलती है फिर भी वो दया दिखाते I हैं। remember so many times I have erred in my life. और कई बार मुझे याद आ रहा है, मैंने भी ऐसा सुना, Things that I shouldn't have done that I did. मैं जो चीज नहीं करना चाहिए मैंने किया, But still my father had pity on me. फिर भी मेरा पिता मेरे ऊपर दया दिखाया। I still remember my father sent me to buy something in the shop. और एक दुकान में मेरा पिता ने कुछ खरीदने के लिए भेजा, I ran to the playground first.
और मैं मैदान में पहले दौड़कर गया, 15-20 minutes I played. 15-20 मिनट में खेलता रहा, Ran back to the shop, दौड़कर गया दुकान पे, bought the whole thing and ran back home. और जो भी खरीदना खरीद फिर घर पे दौड़ के गया, Overall, maybe 15 minutes additional. एक और 15 मिनट और आगे। I didn't know my father is all knowing. मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पिता सब कुछ जानते हैं। Where were you? आप कहाँ पर थे, पूछा। Shop pe. उन्होंने कहा कि मैं दुकान पे गया था। He took a stick. एक डंडा लिया। Where were you? कहाँ पर था? I went to play. मैं खेलने के लिए गया था। Well, even when I did that, and even although I got uh, the wages due for that, for telling the lie, he had pity on me. और मैंने वो जो गलत किया या झूठ बोला, लेकिन मेरा पिता मेरे ऊपर दया किया। I still remember he buying a football for me. फिर भी उन्होंने फुटबॉल उसके लिए खरीदा, He had pity on me. क्योंकि दया दिखाया उन्होंने। God is a God who pities us. परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हमारे ऊपर दया करता है, Such a God, the Father God. और वो परमेश्वर, वो हमारा ऐसा पिता है। But our experience is that we don't feel that relationship with this God, isn't it? लेकिन हमारा अनुभव से ये परमेश्वर के बारे में ऐसा हम नहीं सोचते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। Why we lost that father-child relationship with this Father? पिता और बच्चे का जो रिश्ता का चीज हमने क्यों खोया है अभी तक? You know from your experience. आपके अनुभव से भी आप You जानते don't हैं। feel it in your experience, don't you? आप हो सकता है अनुभव नहीं करते होंगे। We always fear God. हम परमेश्वर को डरते हैं। When we pray, we are not sure whether God is hearing. हम जब प्रार्थना करते हैं, हम पक्का नहीं कि परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं। We are not sure after death where we will go. और हमको पक्का नहीं कि मृत्यु होने के बाद हम किधर जाने वाले हैं। We don't know how God is, whether He talks to me. हम नहीं जानते हैं परमेश्वर कैसा है, क्या वो मुझसे सचमुच बात करता है। Can I tell this to God, and does that mean God will listen to me? क्या ये चीज मुझे परमेश्वर को बताना चाहिए, क्या वो सुनने वाला है। We lost that father-child relationship with God. वो पिता और बच्चे का जो रिश्ता हमने खोया है। Why? What happened? क्यों, क्या हो गया? Bible tells you that. बाइबल उसको बताता है। We read like this. हम ऐसे पढ़ते हैं, But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. और तुम्हारे पाप ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और इसकी वजह से उन्होंने अपना मुंह तुमसे मोड़ लिया है। This is the case with every human being on this earth, not just you. ये सिर्फ आपका नहीं, सारे मनुष्यों का ये हाल है। Because Bible says all have sinned and come short of God's glory. And there is none righteous. No, not even one. क्योंकि बाइबल कहता है कि क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। So all of us have lost that father-child relationship with God. और सब ने वो पिता और बच्चे का जो रिश्ता को खोया है। And then as we lost the relationship and we were wandering in this wilderness, in this world, we started imagining who God is. और जब हम वो रिश्ता को खोया, इस दुनिया में हम भटक रहे थे, और हमने अपना अपना परमेश्वर के बारे में सोच बना लिया, And we created our own gods in our minds. और हमारे मन में हमने अपना अपना ईश्वरों को बना लिया। We read in the Bible, बाइबल में हम पढ़ते हैं, because of that, उसकी वजह से their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. और हमारा जो, हम देखते हैं कि हमारा जो मन भटक गया और उसमें अंधेरा छा गया हमारे हृदय में। Although they claimed themselves to be wise, they became foolish. और वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो मूर्ख बन गए। And then what they do? फिर वो क्या किए? They exchange the glorious image of God and said that the God is like animals or images of a man or mortal human beings, birds or animals. और इसीलिए इंसान ने क्या किया, वो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। So man created his own imaginary gods. और मनुष्यों ने अपने अपने कल्पना ने उन्होंने अपने अपने ईश्वरों को बनाया। That's what is called mythology. और इसको हम देखते हैं, बोलते हैं कि जो पौराणिक बातें कहते हैं। And this is not today's thing. It is ancient times onwards man was started doing this. और सिर्फ आज की बात नहीं है, और पुराने समय से ही इंसान ऐसा कर रहा है। Greek mythology is very famous.
और यूनानी का जो पौराणिक बहुत प्रसिद्ध है, And there were many gods in the Greek mythology, imaginations. और यूनानी पौराणिक में हम देखते हैं कि बहुत सारे ईश्वर है। According to Greek mythology, there was a god for everything, for a wind and for the rivers. Yes, they created their own imaginations and stories. और उन लोगों के हिसाब से एक परमेश्वर हवा के लिए है, पानी के लिए है, और अपने अपने कल्पना ने बहुत सारे भगवानों को उन्होंने बनाया, And accordingly, everything became God. और उनके लिए सब कुछ उसके लिए भगवान बन जाता है। If a snake is capable of biting me, I made that snake a god. अगर एक सांप मुझे काट सकता है, वो भी उसको भगवान बना देते हैं। If rain is going to destroy my crop, rain became God. और मेरा फसल को अगर पानी की वजह से नष्ट होता है, वो भी भगवान बन जाता If है। flood comes and take away my home, flood became God. और बाढ़ आने से मेरा घर को सर्वनाश करता है, वो भी भगवान बन जाता है। If any animal that gives me some provisions, that became a God. कोई जानवर मुझे प्रबंध करता है, वो भी भगवान बन जाता है। Minds have become darkened, Bible says. I'm not saying, Bible says. और हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कहता है कि लोगों का मनुष्य के मन में वो अंधियारा हो गया, And thus we forgot that God is our Father. इसकी वजह से हम भूल गए कि वो परमेश्वर हमारा पिता है। And God cannot enter with us or have fellowship or relationship with us as long as we are in sin. और अगर हम पाप में रहेंगे, वो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं, वो रिश्ता नहीं बन सकता है। Because He is a holy God, as I already told you. क्योंकि हमने बताया कि वो क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। God cannot have anything to do with sin. परमेश्वर को पाप के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं वो। Sin is disobedience to God. पाप मतलब परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करना। Sin is rebellion to God. पाप मतलब परमेश्वर के खिलाफ बलवा करना। Sin is walking away from this God. पाप मतलब परमेश्वर से मुड़कर दूर जाना। Sin is worshipping anything else other than the real God. पाप मतलब परमेश्वर को छोड़ और बाकी कोई भी चीजों को आराधना करना। And hence, that Father God sits and grieve at His creation. और इसीलिए वो परमेश्वर जब देखता है अपने सृष्टि में, और उसको बहुत दर्द होता है, Sin has ruined the lives of human beings in the world. क्योंकि इस संसार में पाप ने लोगों का जीवन को भ्रष्ट कर दिया है। More and more agony started coming to this world. और इसकी वजह से कितना वेदना दुख आ गया है। Sin has brought in death to this world. और ये पाप इस दुनिया में मृत्यु को लाया है। Sin has brought in vulgarity and immorality to this world. और हम देखते हैं कि पाप के कारण इस दुनिया में जो असुंदर चीजें हैं, जो अनैतिकता चीजें लाया है। Just imagine, somebody said, a cigarette, definition of a cigarette. किसी ने कहा कि सिगरेट का परिभाषा, A cigarette is defined as having fire on one side and the fool on the other side. और एक तरफ आग है और दूसरी तरफ मूर्ख है, That's cigarette. ये सिगरेट है। I was seeing in a window, one of my colleagues was trying to buy some cigarette. Big letters it is written. Smoking is injurious to your health. और भाई ने देखा कि कोई सिगरेट खरीद रहा था, वहां पर लिखा है कि जो धूमपान करना शरीर के लिए हानिकारक है, Buying it. फिर भी वो खरीद रहा है। I said, are you reading it? You read English, right? आप पढ़ते हैं ना, अंग्रेजी पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ता है, लेकिन स्ट्रेस है भाई, स्ट्रेस मतलब क्या है? We destroy ourselves. Why? Because sin has enslaved us. हम अपने आप को नष्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम पाप का गुलाम बन चुके हैं। We all are sinners. हम सब लोग पापी In हैं, one way or the other. ऐसा हो या वैसा हो, There is none who is righteous. कोई भी धर्मी नहीं। We lost that relationship with that Father. वो पिता के साथ रिश्ता हमने खोया है। Then the question is, how can I get back that father and child relationship with God? सवाल उठता है कि अभी वो पिता और बच्चे का रिश्ते में मैं फिर से कैसे वापस आ सकता हूँ? Oh, Bible gives you that answer as well. और बाइबल उसका उत्तर देता है। That's why Bible is a unique book. इसलिए बाइबल एक अनोखा किताब है। There is no other book like Bible that gives you what you need to do. और बाइबल के जैसा और कोई किताब नहीं है जो आपका जरूरत है वो प्रबंध करता है। Bible is a father's letter, love letter to his child. बाइबल पिता का प्रेम पत्र उनके बच्चे के लिए है। So if you don't have a copy, please read that Bible. We will be happy to give you the Bible if you अगर want. आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जरूर लीजिए, हम इस कॉपी आपको दे देंगे। Read it, पढ़िए उसको, and that will enlighten you.
और वो आपके जीवन में ज्योति लाएगा। So it says how we can get back to God and in a father-child relationship. और पिता और बच्चे का जो रिश्ते में हम कैसे वापस आ सकते हैं, Let me read it for you. हम पढ़ेंगे उसको। The true light that gives light to everyone was coming into the world. उस प्रकाश की जो सच्चा था, जो हर मनुष्य को ज्ञान की ज्योति देंगे. You can carry on. हाँ, Verse 9, John 1. यूहन्ना का 1:9 में लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उनके अपनों ने ही उससे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Okay, how we can become children of God back is what the question, isn't it? और सवाल है कि हम परमेश्वर का संतान कैसे बन सकते हैं। And here is the answer. यहाँ पर उत्तर है, It's talking about a person through whom the world was made. और इस ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है जिसके द्वारा ये दुनिया को बनाया गया। कौन दुनिया बनाया? हाँ, हेलो, कौन दुनिया बनाया है? God, isn't it? परमेश्वर ने बनाया। God is the creator. We said in the beginning itself. शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर सृष्टि करता है, है ना? That's why we call him as Father God. इसलिए हमने उसको पिता परमेश्वर कहा। But that God came to this world is what we are reading here. और वो परमेश्वर इस दुनिया में आए, वही हम पढ़ रहे थे। And he was light. और वो ज्योति था, And he came to his own place. वो अपने जगह पर आया। World was created by him and that's his own place. ये संसार तो उन्होंने बनाया, उनकी जगह पर वो आए। And when he came, they rejected him. और जब वो आए, लोगों ने उसको तिरस्कार किया। They said, no, this is not God. उन्होंने कहा कि नहीं, ये परमेश्वर नहीं है। No, we don't want to trust him. हमको इसको भरोसा नहीं We करना don't है, want to get his love. और उसका प्रेम हमको नहीं चाहिए। We rejected him उन्होंने उनको तिरस्कार किया and they crucified him. और उन्होंने उनको क्रूस पर मार डाला। About whom we read, किसके बारे में हम पढ़ते हैं? Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के बारे में। God incarnated to this world. परमेश्वर देह धारण करके इस दुनिया में आए। God who wants to love his children came to save his children. परमेश्वर जो अपने बच्चों को प्रेम करता है, उनको उद्धार देने के लिए आया। All powerful God. पूरा सामर्थ्य परमेश्वर, All loving God. पूरा प्रेम करने वाला, All good God. अच्छा परमेश्वर, All holy God पवित्र परमेश्वर came to this world. इस दुनिया पर आए। Lived like us as human beings. He took the form of human being. हमारे जैसा जिए, वो इंसान बनकर आए। His name was Lord Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। And then on the cross, he took upon himself all the sins and the punishments of you and me on his shoulders. और क्रूस पर जाके वो आपका और हमारा सारे दंड, जो पाप का दंड को अपने ऊपर ले लिया। He died on our behalf on the cross. और हमारे जगह वो क्रूस पर वो मरे। Where you should have died, the child should have died, the father took that upon himself. आपको मरना था, उनके बच्चे को मरना था, लेकिन वो पिता ने, वो प्रभु ने आके वो मरे हमारे Like a लिए, father, एक पिता के जैसा। like a shepherd who want to save his sheep. और वो चरवाहा जैसा जो अपने भेड़ों को बचाना चाहता He है, died on the cross. वो क्रूस पर हमारे लिए मरे। And then on the third day, he rose again from the dead. और तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठे, Because he was more powerful than death. क्योंकि वो मृत्यु से भी वो शक्तिशाली है। He is all powerful God. वो सामर्थी परमेश्वर है, He is just God. वो न्यायी परमेश्वर है। Hence, he died for you and me. इसीलिए वो आपके लिए, मेरे लिए मरे। He is powerful वो God. सामर्थी परमेश्वर, Hence, he rose again from the dead. और इसीलिए वो मरे हुए में से जी उठा। He is alive. वो जिंदा है, And he wants to have that relationship back with you and me. और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो खोया हुआ रिश्ता फिर से स्थापना करने के लिए, If you are willing. अगर आप चाहते हैं। He is not a God who will force himself on you. वो ऐसा परमेश्वर नहीं आपको जबरदस्ती करेगा। Oh, I wanted to be your father. You better come. मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, तुम मेरे पास आना चाहिए, No. ऐसा नहीं। He is a gentle father. वो हम देखते हैं कि वो नम्र पिता है। It's up to you. ये आपका मामला है। If you wanted him to be your father, अगर आप चाहते हैं कि वो आपका पिता बने, he will be happy to come.
वो खुश होंगे, आपके पास आएंगे। We read in the Bible that says he knocks at your door. बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो आपके वो खटखटा रहे हैं। If you open the door of your heart, आपके हृदय का दरवाजा अगर आप खोलेंगे, he will come inside. वो अंदर आएंगे। If not, अगर नहीं, he will have to stay outside. नहीं तो फिर वो बाहर ही खड़े रहेंगे। He really wanted you to allow him inside in your life. और वो सचमुच चाहते हैं कि आप अनुमति दे आपके जीवन में आने के लिए। Will you? क्या आप ऐसा करेंगे? Of course, that doesn't mean that he will be one of the visitors inside. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो आने वाले में से वो एक ही है, No, that is not possible. ऐसा नहीं है। Because Bible says he is God, eternal, the only wise God. क्योंकि बाइबल कहता है कि वो अनंत कालिक बुद्धिमान परमेश्वर है। And he is the only God, वो Almighty. एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान। And when you invite him, every other things that you call gods has to go out of your heart. अगर आप उनको आमंत्रण देंगे आपके हृदय में, जो चीज ईश्वर आप मानते हैं वो सब जाना चाहिए। That's your call. और इस प्रकार से आपको बुलाहा करना है। Nobody is forcing you. कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। But God cannot come inside if you keep others also inside. परमेश्वर अंदर नहीं आएंगे अगर आप बाकी लोगों को भी अंदर रखा है तो। He cannot be one among other gods because God is one. क्योंकि बहुत सारे ईश्वरों में से वो ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही ईश्वर है। I have only one father. मेरा एक ही पिता है। There are many uncles I have, मेरे बहुत सारे मामू लोग हैं whom I call daddy. जिसको मैं पिता कहता हूँ। One mother's husband is in Agra. I called him Agra daddy. और जो आता का जो पति को मैं डैडी कहता हूँ। One uncle was in Baikala, so I called him Baikala daddy. एक अंकल बाइकला में है, उसको मैं बाइकला डैडी कहता हूँ। Thus I had 5 daddies. मेरा 5 पिता लोग हैं। But ultimately, I have only one father. लेकिन सच में देखे तो मेरा एक ही पिता है। I might have called them out of respect, whatever names, but when it comes to fatherhood, I have just one. और मैं सम्मान दे के दूसरे को भी डैडी कहता हूँ, लेकिन मेरा तो एक ही पिता है। There is only one God. एक ही परमेश्वर है। There is only one father. एक ही पिता है। The only one that can help you. एक ही व्यक्ति है जो आपको मदद कर सकता है। If you wanted to have him in your heart, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके हृदय में आए, you can tell to him, आप उनको कह सकते हैं, Lord, I am a sinner. हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, Forgive me my sins. मेरे पाप को क्षमा कीजिए। I believe that you died for me मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे and you rose again from the dead. और आप मरे हुए में से जी उठे। You can save me. आप मुझे बचा सकते हैं। Would you please come into my heart हे प्रभु, क्या आप मेरे हृदय में आप आएंगे and be my father? और मेरा पिता बनिए। If you make that prayer, अगर ऐसा प्रार्थना आप करेंगे, Bible says बाइबल कहता है that you will get the right to become the child of God. That's what we just read. और अभी हम पढ़ रहे थे कि आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलेगा। Who receive him, जो उसको ग्रहण करेंगे, those who believe him, जो उसको विश्वास करेंगे, he gave the right to become children of God. जितनों ने उनको विश्वास किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार Bible दिया। is saying that. बाइबल ऐसा कहता है। Try it. इसको कोशिश कीजिए, It works. ये काम होता है। How do I know? कैसे मुझे मालूम है? I did it. क्योंकि मैंने किया है। As a young child, जब मैं जवान था, I believed this. मैं विश्वास किया ये बात। I said to the Lord, मैंने प्रभु से कहा, kneeling down in my own home, मैं घुटने में आया अपने घर पर I told him, और उससे कहा, Lord, I am a sinner. हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा कर। I believe that you died for me, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे rose again from the dead. और आप मरे हुए में से आप जी उठे। You can save me. आप मुझे बचा सकते हैं। Come into my heart. हे प्रभु, मेरे हृदय में आइए। My only God, my only Lord, मेरा एक ही परमेश्वर, एक ही प्रभु, my only Father. मेरा एक ही पिता। I handed my life to him. मैं मेरा जीवन उसके हाथ में सौंप दिया I committed to live my life for him ever after. और उसके बाद भी मेरा जीवन उसके लिए जीने के लिए समर्पित किया। That's it. वही किया, My life changed. मेरा जीवन बदल गया। I'm telling you the truth. It changed literally. और मैं सच्चाई कह रहा हूं कि ये सचमुच मेरे जीवन में ऐसा बदलाव हुआ।
It gave me a new idea. I was living only for football in my days. In young और मैं तो days. सिर्फ फुटबॉल के लिए जी रहा था, लेकिन मुझे एक नई सोच आई। Life was only that. मेरा जीवन वैसा ही था, God turned my life. लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर बदल दिया। My thoughts have changed. मेरे विचार बदल My गए, feelings have changed. मेरा भावना बदल गए। God became my father. परमेश्वर मेरा पिता बन गए, Even for a small little things, I go to him. और छोटा छोटा चीज के लिए मैं उसके पास जाता हूँ। I have a lovely wife. मेरा बहुत अच्छा पत्नी है, भाई कहते हैं। But even more than that, I go to my father in heaven. और मेरा जो स्वर्गीय पिता के पास मैं जाता हूँ, Because more than what my lovely wife can ever understand, my father understands me. हो सकता है मेरा पत्नी नहीं समझती, लेकिन मेरा पिता मुझे समझता है। Because there are things that I'm not able to explain with my communication. I'm not able to even express, and I'm not able to even understand what am I thinking. But my father knows it. क्योंकि ऐसे कुछ चीज है जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है, या मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरा पिता मुझे समझता है। There are days I wonder and ask to myself, Lord, oh Father, why am I getting disturbed? I don't know any reasons. और एक कभी कभी ऐसा समय था कि मैं ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसका क्यों तकलीफ हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। I am not able to understand myself. मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ, But my father understands it. लेकिन मेरा पिता समझ रहा I है। tell him that. मैं जाके उनको कहता हूँ, That's the relationship you can have. और ये रिश्ता आपका भी बन सकता है, Once for all. एक बार हो सकता है You don't पूरा, need to repeat it. और बारी बारी नहीं। How many times I had to be born to become my father's son? कितने बार मुझे जन्म लेना होगा मेरा पिता का बच्चा होने के लिए? हाँ, एक ही time. एक ही बार। That's what it is. वही करना है। You can be that father's child once for all. और उस पिता का संतान आप हमेशा के लिए बन सकते हैं। What does it mean? उसका मतलब क्या है? It means freedom from my fear and anxieties. इसका मतलब मेरा जो चिंता और उससे मुझे आजादी, स्वतंत्रता। Bible says the spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. और बाइबल कहता है कि जो आत्मा हमें मिला है, और वो भय के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर ने ले पालक संतान बनाया, ताकि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं। Like Papa, like Daddy. You can call him as your father. जैसे परमेश्वर को हम पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, ऐसे हम परमेश्वर को कह सकते हैं। When we pray, we can go to him and say, Ah, my Father, our Father in heaven. जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके पास जाके कह सकते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता। It gives me answers to my prayers. और मेरा प्रार्थना का उत्तर देता है It वो। gives me freedom from anxiety and fears. और भय से या चिंता से मुझे स्वतंत्रता देता है। It gives me eternal home. और वो अनंत काल का घर वो हमें देता है। When a school is over and where will we go? और स्कूल खत्म होने से कहाँ जाते हैं हम लोग? We'll be getting back home, घर में वापस आते where हैं, my Father is. जहां पर मेरा पिता है। If I die tonight, और आज मेरा अगर मृत्यु हो जाए, I know where I'm going. मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। I'm going home मैं उस घर पर जा रहा हूँ, to my Father, मेरा पिता के पास। waiting for me with open arms. और वो हाथ बाहें फैला कर वो इंतजार कर रहा है Hold me. मुझे गले लगाने के लिए, मुझे गले लगाने के लिए, With him for eternity. और उनके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए। That's what you will have. और आपको भी ऐसा होगा। Suppose you want to reject this message of good news. अगर ये सुसमाचार को आप ठुकराएंगे, A time when you leave this world, जब इस संसार को आप छोड़ेंगे, you will stand in front of God's judgment seat. परमेश्वर के सिंहासन के सामने, न्याय के सिंहासन में आप खड़ा होना होगा। It's a throne of justice. और वो हम देखते हैं कि न्याय का सिंहासन है वो। Having lived with sin, और पाप के साथ जीते वक्त, never accepted Jesus and got remission for your sins, और पापों की क्षमा या यीशु मसीह को कभी विश्वास नहीं किया, he will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus, says the Bible. और बाइबल कहता है कि वो उनको दंड देंगे जिन्होंने प्रभु यीशु का सुसमाचार को विश्वास नहीं किया। They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might. और हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड देगा, और वो अनंत काल का अग्नि में डाला जाएगा, और हम देखते हैं कि उनको वहां से निकाला जाएगा। So there are two things that I have presented to you. दो बातें आपके सामने रखा गया। God can be your father, परमेश्वर आपका पिता बन सकते हैं, or God can be your judge. या फिर पिता आपका न्यायाधीश
Whom do you want God to be for you? आप क्या चाहेंगे परमेश्वर आपके लिए क्या बने? If you wanted God to be your father, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका पिता बने, accept Lord Jesus into your heart. प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, Believe in him. उसको विश्वास कीजिए, Give your life into his hands. आपका जीवन उनके हाथों में सौंप दीजिए Let him be your Lord. और वो आपका मालिक बने। May the God bless you for that. परमेश्वर आपको आशीष करे। I think we all want to be maintain that relationship with our Father, isn't it? हम सब लोग चाहते हैं वो पिता का जो रिश्ता बनाने के लिए, And He has not made it so difficult for us to establish this relationship. और ऐसा कोई मुश्किल होने के लिए उन्होंने ऐसा ये रिश्ता बनने के लिए उन्होंने किया नहीं है। All that you need to do, as we were reminded, to believe on what He has offered you. और हमें क्या करना है, जैसे याद दिलाया गया कि जो वो हमको देना चाहता है उसके ऊपर विश्वास It करना है। says, "Who that believeth on the Son hath everlasting life." जैसे लिखा गया है कि जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। So you want to be His child this evening? क्या आप उनका संतान बनना चाहेंगे? Receive the Lord Jesus Christ, and you can be His child, God's children. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, उनको अपनाइए और परमेश्वर का संतान होने का अधिकार Thank you मिलेगा। for listening to God's word. धन्यवाद प्रभु का वचन सुनने के And लिए। God will speak to you through the week that is ahead. और ये हफ्ते भर में परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा, And you need to make this decision yourself. और ये निर्णय आपको खुद लेना है। Whether you want to maintain, establish this relationship, or you want to reject this offer. क्या ये जो रिश्ता परमेश्वर के साथ आप बनाना चाहोगे या उसको तिरस्कार करोगे? And if you reject, you know the consequence. और अगर आप तिरस्कार करोगे तो उसका नतीजा क्या है And आपको if you पता है। receive, you know what your relationship is established back. और अगर आप उसको ग्रहण करेंगे वो रिश्ता कायम हो जाएगा, We बन pray जाएगा। that all of you who have not received him as your father, that you may receive him this evening. और हमारा प्रार्थना है कि जिन्होंने अभी तक वो परमेश्वर को पिता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आप उसको ग्रहण Once करेंगे। again, thank you for coming धन्यवाद आप लोग आने के लिए, and for listening to God's word. प्रभु का वचन यहाँ पर सुनने के लिए। May God speak to you and his blessings be with you. परमेश्वर आपसे बातें करे, आपको आशीष करे। Do come again and listen to God's word. Every Sunday we have this meeting here. आप आगे भी आइए, हर इतवार को And सभा होती है। bring in all your friends as well. They may listen to this truth. आपके फ्रेंड्स मित्रों लोगों को भी लेकर आइए, वो भी वचन सुनेंगे। Shall we close in prayer? प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। Father God, we thank you for this reminder this evening हमारा स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपने हमें याद दिलाया that you are our heavenly Father, the Creator. आप हमारा स्वर्गीय पिता है जो सृष्टि करता Your है। love towards us while we are sinners is so great, जब हम पापी थे, पाप करने वाले थे, आपने हमसे प्रेम and किया that you gave your Son for us just to save us. ताकि आपने आपका पुत्र को दे दिया हमें उद्धार We करने thank के you लिए। for this offer, that to make us your children once again. It's in your hands. You have left it to us to decide. और धन्यवाद कि आपने हमें संतान बनाने के लिए प्रभु जी ये मौका आपने हमें दिया है। And we thank you, Lord, for speaking to us this evening. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज शाम के समय आपने हमसे बात Give की। us no rest till we come to become your sons and daughters. प्रभु जी वो विश्राम दीजिए ताकि हम आपका बेटा बेटी बने, And thus we could enjoy the blessings that you have offered for us. ताकि जो आपने हमारे लिए किया है वो आशीष को हम अपनाएं। We once again commit every head bowed in your presence this evening. हम सब लोग सर झुकाए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते Oh हैं। Lord, every need of ours is open before you. प्रभु हमारे सारे जरूरत आपके सामने And है। according to the needs of each one, thou mayest bless them, Lord. प्रभु हमारे जरूरत के अनुसार प्रभु आप प्रबंध Thank करेंगे। you for speaking, Lord. धन्यवाद प्रभु हमसे We बात ask किया। this, giving thee thanks in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. ये प्रार्थना हम धन्यवाद देके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for coming. Do have a cup of tea before you leave. धन्यवाद आने के लिए, आप चाय पीकर जाइए। And any doubts, questions, please stay back and ask. There are brothers and sisters who can help you out. अगर आपको कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप रुक